Hi everyone, happy morning my lovely kids. I know you are missing school a lot. For that reason, I am here today. I, Jinal Thakkar. We will learn mathematics together. As you know me, I am your class teacher as well. So, let's start the session with mathematics. So, let's start with this. Your chapter number 1 is Numbers and Numerations. This chapter is huge. There are 7 to 8 exercises in this chapter. We will be covering first exercise in 2 videos. The first part of first exercise is here. Let's start. Today we will cover majorly 4 topics of exercise 1. The first topic will be write in words. Second, write in numerical forms. Third, write in expanded form. And fourth will be write in short forms. We have already learned numbers up to 999 in class 3, 9999. Till 9999 we have already learned in class 3. The first exercise is already based on a revision which you have learnt in 3rd standard. So let's take a short example on this. Let me write any number as you say 6, 4, 2, 9. Okay. This number will be our ones. This 2 will be our tens. This 4 will stand for 100. And the 6 will stand for 1000. As we pronounce 6429, and these are the places: nines, ones, tens, 100, 1000. I hope you had a flashback of standard 3. So let's go further. Now our first topic is write in words. Here will be the number and we will discuss on that. The first number is 3849. We pronounce as 3849. 3849. 3849. Next example, 8074. 8074. You will had in a question, okay ma'am, where 100 gone? Ma'am, 100 कहाँ गया? Remember, 100 की place पर हमारे पास 0 है. So it's not necessary to mention that. You can only write that 8074. I hope you remember and I hope you understand. Three 3407. 7 stands for ones, tens, 100, 1000. So 3 stands for 1000, so I will write 3000. 4 stands for 100, I will write 400. I don't have tens, I will ignore that. And I will start ones and 7. Once more, I repeat for you. हम जैसे pronounce करते हैं, हम वैसे ही लिखेंगे. 3 stands for 1000, तो मैं वैसे ही लिखूंगी 3000. 4 stands for 100, तो मैं वैसे ही लिखूंगी 400. मेरे पास टेंस नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगी. देन आई विल मूव टू वंस. वंस मेरा है 7. ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू स्टार्ट द सीक्वेंसिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. आपको हमेशा पीछे से सीक्वेंसिंग शुरू करनी होगी. वंस, टेंस, 100, 1000. हमेशा पीछे से सीक्वेंसिंग रखोगे, आपका प्रॉपरली आंसर आ जाएगा. आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस. Please have a look on this. If anyone has doubt, you can contact me further. So, our next topic will be write in numerical forms. In this, the whole spelling will be given to you. You have to write in numbers. हम पहले क्या करते थे? हमें नंबर दिया था, हम उसकी स्पेलिंग लिखते थे. अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर, कि हमें स्पेलिंग दी हुई होगी, हमें उसका नंबर लिखना है. लाइक 5320. तो मैं क्या करूँगी, मैंने जो रीड किया मैं उसी का नंबर लिखूँगी. 5320. नेक्स्ट एग्जाम्पल,
1040। यहाँ पर हमारे पास थाउजेंड्स भी था, हंड्रेड्स भी था, टेंस था, हमारे पास वंस नहीं था तो हमने ज़ीरो लगा दिया था। अब इसके अंदर 1000 वी हैव 1000, रिमेंबर द ऑर्डर, वंस, टेंस, 100, 1000। मेरे पास 1000 है, 1000 तो ये हो गया। मेरे पास 100 नहीं है तो मैं क्या करूँगी, मैं लगा दूँगी ज़ीरो। मेरे पास वापस 40 है, 40 स्टैंड्स फॉर टेंस, मेरे पास टेंस है, मैंने लिख लिया। आई होप आपको थर्ड स्टैंडर्ड की चीज़ें सारी याद आ गई होंगी। सो नेक्स्ट 8765। इन दिस वी हैव थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, 64, 1000, 100, टेंस, वंस, 8765. I hope the second topic is clear with everyone. Okay. Now it is write in expanded form. In this आपको नंबर दिया होगा, उसको आपको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, मीन्स आपको बीच में प्लस ऐड करके आपको लिखना है। अब इसकी मैं आपको एक शॉर्टकट सी ट्रिक बताऊं जो मेरी ट्यूशन टीचर ने मुझे बताई थी। बहुत ईजी है, नो यू विल हैव अ ग्रेट फन इन दैट। सो लेट्स स्टार्ट। पता मेरी ट्यूशन टीचर ने मुझसे क्या कहा था कि आपको शुरू हमेशा फर्स्ट नंबर से करना है। यहाँ पर मेरे पास है फर्स्ट नंबर 6, 8, 2, 7, दीज आर द नंबर्स। ओके, अब मेरी ट्यूशन टीचर ने क्या कहा था कि पहले आप लिखो 6, फिर उसके बाजू में जितने मेंबर्स हैं ना उतने ज़ीरो लगा दो। ओके चलो, मैंने 6 लिखा, फिर 3 मेंबर्स है 1, 2, 3, तो मैंने 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। अब 6 हो गया आउट। अब आता है टर्न 8 का। अब मैंने 8 को लिखा, उसके कितने मेंबर्स है बाजू में 2 और 7, तो मैंने क्या किया 2 ज़ीरो लगा दिया। अब 8 भी हो गया आउट, 8 को भी बाय बाय कह देंगे। अब आता है टर्न 2 का। 2 के बाजू में कितने मेंबर्स है 1, तो मैंने 1 ज़ीरो लगा दिया, और 7 बेचारा अकेला है तो वो अकेला ही रह जाएगा। इन दिस वे वी प्रोनाउंस। सो वी लर्न द शॉर्टकट टू रिमेंबर एक्सपांडेड फॉर्म। व्हाट वाज 6827। हमने क्या किया था, 6 के बाजू में जितने मेंबर्स खड़े हमने उतने ज़ीरो लगा दिए थे, 8 के बाजू में जितने मेंबर्स हैं हमने उतने ज़ीरो लगा दिए थे। सो लेट्स मूव फर्दर। 4269। जैसे मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ उस अकॉर्डिंग भी आप ये एक्सपांडेड फॉर्म बना सकते हैं। जैसे मैंने प्रोनाउंस कैसे किया 4269, अब उस अकॉर्डिंग भी आप अपना एक्सपांशन फॉर्म लिख सकते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर। 4029, 4000, तो आई विल राइट 4000। आप देखो यहाँ पर वंस, टेंस, 100, 1000। वंस की जगह पर 9 है, टेंस की जगह पर 2 है, मेरे पास 100 कुछ नहीं है तो आई कैन राइट 0 ओवर देयर। 4029, व्हाट आई विल राइट 4000 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 9। आई होप दिस एक्सपांशन फॉर्म इज क्लियर टू यू। शुड आई मूव फर्दर or it's going overload little bit? Okay, only one topic, only 3 sentences more. Okay, and I know that's easy one, you will remember that. Write in short forms. Okay, हमने इसके अंदर क्या किया था कि हमें जो नंबर्स दिए थे हमने उन नंबर्स को एक्सपांडेड फॉर्म में किया था। अब हम क्या करेंगे, हमें एक्सपांडेड फॉर्म दिया होगा, हम उसे कन्वर्ट करेंगे शॉर्ट फॉर्म्स में। लेट्स स्टार्ट इट अगेन। 3000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 6, 3456। हमें एक्सपांडेड फॉर्म दिया हुआ है, हमें नंबर्स लिखने हैं। 7098, जैसे हम प्रोनाउंस करेंगे वही हम लिखेंगे। 7000 प्लस 90 प्लस 8, वी विल राइट वंस, टेंस, 100, 1000।
आपने इसके अंदर ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे पास हंड्रेड्स कुछ नहीं था. What we wrote? 0 at that place. I hope you understood. Okay, so I know it's going to overload. Only last statement, please. Okay. 2008. अब इसके अंदर ऑब्जर्व करोगे एक्सपांडेड फॉर्म में हमारे पास सिर्फ 1000 है और वंस है. अब मैं क्या करूं? मेरे पास हंड्रेड्स भी नहीं है, मेरे पास टेंस भी नहीं है. What I will do? Yes, I will write zeros in that places. To fill this, I will write zeros at that places. Ones, tens, 100, 1000. I hope this is understood, and I know you said the thank you. That was the last slide. Okay. I know it's going a little bit hectic, but it's fine. I know my students are very brilliant. So that's all for today. Today we learned 4 topics. We have started with write in numbers, write in numerical forms, write in short, and write the expansion form. I will be sending the worksheet of exercise 1 whole, and the exercise first is divided into 2 videos. I will be sending the worksheet of combining 2 videos in one. I hope you stay home, learn it, and we will meet further. God bless you. Thank you and have a nice day.